Assalamu alaikum everyone. Hope everyone is doing well. Uh, just let me share my screen so that we can move on with it. Right. I hope you all can see the screen. Right. I hope you all are doing well. All right. Let's just continue where we left yesterday. Yesterday we were discussing uh, about educational movement, about different movement that was like Faraizi movement and Aligarh movement, Kisan movement, and other movement. Actually, those movement were the founding stone of the Muslim struggle in the subcontinent against British Raj. All right. So here we begin with the political development of Muslim in modern Iran. Going back to the Aligarh movement, as I mentioned yesterday, that Sir Syed Ahmad Khan asked Muslims of subcontinent to stay away from politics and get education first. Actually, the basic reason behind that particular development was dependent on the principle of educating Muslims of that time. All right. Okay, so here we begin. The basic development of, in terms of politics, was the foundation or the establishment or the establishment of Indian National Congress in 1885. Actually, Indian National Congress was founded on the principle of providing with the political representation to Indians, irrespective of caste, color, creed, or whatever was there. So it was never meant to be a Hindu organization as it was being called afterwards. All right, afterwards it was being called as an Indian or the Hindu organization. But initially, it was meant to provide support to Muslims as well as Hindus as well as other nations that used to live over there in the subcontinent. So, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश हो रही थी तब देयर वर डिफरेंट कंसर्न्स कि भाई ये जो है ये जो पार्टी बन रही है it whether it is going to fulfill its promises on which it is being founded. All right, so फाइनली एक ऐसी पार्टी बनी जिसमें आपके मुस्लिम्स भी शामिल थे, जिसमें हिंदूज भी शामिल थे और जिसमें जो वो सारे लोग शामिल थे जो कि उस वक्त पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन डिमांड कर रहे थे. ऑलराइट, सो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल थे, उन्होंने इस पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फाउंडेशन रखा था. और एज आई मेंशन्ड कि भाई लॉर्ड डफरिन एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ लॉयल अपोजिशन ऑफ ब्रिटिश राज. एक्चुअली द बेसिक रीजन जो कि मैंने डिफरेंट बुक्स से पढ़ा वो ये था कि अंग्रेजों को भी एक अपोजिशन नीडेड थी इन ऑर्डर टू गेट द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. यू मस्ट हैव हर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कि जिसमें ये होता है कि क्रिटिसिज्म तो होता है लेकिन अल्टीमेटली इट बेनिफिट्स the local population. Ultimately, it benefits all those people who are involved in any decision, right? So Lord Dufferin ने कहा कि भाई जो आइडिया है लॉयल अपोजिशन का ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है. और बैरिस्टर उमेश चंद्र बैनर्जी जो है इनके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे. ये एमसीक्यूज आता है, you just note it down or I'll be providing you with the PowerPoint presentation as well. All right, objectives of Indian National Congress. The basic objectives, as I already mentioned, were related to the unity, to fuse one nation, whole of all different elements that constitute the population of India. It means that there was no logic of breaking India into two or 3 nations or 4 nations or whatever. 2 nation theory abhi tak nahi aayi thi, right? Although there was the concept of 2 nation theory when we go back to in another perspective when we talk about Shah Waliullah, or that is another discussion. All right, but in terms of politics, India was only one nation, that was Indians. All right,
and those Indians wanted their representation in front of their British lords. All right. So this party was made in order to fuse one nation, whole of different elements that constitute the population of India. Number two, to gradually regenerate along all lines, whether mental, social, moral, and political of the nation, thus evolved. Number three, to consolidate the union between England and India by securing the modifications of such of its conditions as may be unjust or injurious to the later country. So, as it is very clear from these lines कि जो बेसिक रीजन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो था एक यूनियन कायम करना, एक राब्ता कायम करना बिटवीन इंडियंस एंड ब्रिटिश जो लॉर्ड थे उनके. क्यों राब्ता कायम करना? क्योंकि एक जब तक आपका आपकी राया के साथ राब्ता नहीं होगा तब तक आप रूल नहीं कर सकते, भले आप कितने भी पावरफुल हो जाएं. लेकिन because you rule people, and until and unless you do not have contact with people, how can you rule them? All right. So constructive criticism का एक बहुत मेजर फ्लॉ था जो कि मिसिंग था, तो उसके लिए उन्होंने पार्टी बनाई. और पार्टी का काम यही होता है कि इफ समवन इज फीलिंग डिफिकल्टी इन एनी स्फीयर ऑफ द लाइफ, he or she may contact administration, he or she may contact the authorities which are concerned, right? So उस authorities concerned को राब्ता करने के लिए भी पार्टी की जरूरत पेश आई. All right. Okay. Its founding members proposed economic reforms and wanted a larger role in the making of British policy for India. Now you see, the founding members are actually demanding economic reforms. Now, why they are demanding economic reforms? Because at that time, as we were discussing yesterday, that there was dual tax policies in Bengal, all right, and there were different other issues that Indians were going through, all right. So in order to cope up with all the situations, now since they had the party, now they have the authority to demand whatever they want to do. ऑलराइट, मतलब अपने अख्तियार में रह के नाउ अब वो डिमांड करना शुरू हो गए. देखिए अवेयरनेस ऐसे आ रही है इंडियंस में, ठीक है. सो बाय 1907 Congress had split into a moderate group led by Gopal Krishna Gokhale, who sought dominion status of India, and a militant faction under Bal Gangadhar Tilak, who demanded self-rule. Now you see, in 1885, this party is being found, all right? And now in 1907, it means 15 and 20, after 22 years, now Congress is that powerful that it is being divided into two factions, all right? Now you see, one faction is demanding the dominion status, which was already there, all right? But the second group that was a bit radical, when we compare both of the groups, so वो जो radical group था वो डिमांड कर रहा था कि नहीं, अब जो इंडिया है वो सेल्फ रूल पे डिपेंडेंट होगा, सेल्फ रूल करेगा. इट मींस दैट एंड टू ब्रिटिश राज. नाउ यू सी, ये 22 सालों में जो डेवलपमेंट है, ये अवेयरनेस है, ये अवेयरनेस है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट के बाद आपको मिली है. ठीक है, अब उस डिस्कशन में हम बाद में जाते हैं कि उसके बीच क्या हो रहा था. ऑलराइट. By 1920, the Congress began a campaign of passive resistance led by Mohandas Gandhi, Mahatma Gandhi, against restriction on the press and political activities. Now, these are the developments which are performed because they had the party. पार्टी होने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि इनके पास पार्टी है, पार्टी होने का मकसद ये है कि इनके पास एक प्लेटफॉर्म है जहां पे वो रह के अपनी डिमांड्स आगे अंग्रेजों तक पहुंचा सकते हैं. ये उनकी डिमांड्स हैं. ये उनकी डिमांड है कि भाई जो प्रेस फ्रीडम है या जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं, आप अगर उनको सप्रेस करते हो, तो ये सप्रेस करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि हम डिमांड कर सकते हैं. Although the Congress claimed to represent all Indians, many Muslims, fearful of the vast Hindu majority, began to withdraw from the Congress. Now you see कि 1920 तक, although
जो है आपकी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन चुकी थी, ठीक है, हम वो बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन फिर भी इसमें काफी मुसलमान अभी थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता as they were feeling that they are being cornered, they are being suppressed, their demands are being suppressed, तो उन्होंने क्या किया, they started parting ways with the Congress, and they started looking for other options. That for other options can be getting a faction within the Congress, or joining All India Muslim League, or making your own party, or whatever. The Congress was divided on approaches to economic reforms. The conservatives favored cautious reforms, whereas the leftists, of whom Nehru was a leader, urged socialism. Now you see that the Congress is bringing up with different options that the British should have adopted in order to bring prosperity to the United India, right? Partition of Bengal. Now, it is an important event. I would say that it was an event that actually made Muslims to look for other option. I would say that the partition was a complete step taken by British, but that step actually paved the way for Muslims to think about their own. क्या था? Let's just discuss. Partition of Bengal effected on 16th October during Lord Curzon's rule. All right, this is for your MCQs. It proved to be a momentous event in the history of modern Bengal. How? How come it is the momentous event? The idea of partitioning did not origin with Lord Curzon. Bengal, which included Bihar and Odisha, was admittedly a large province. It required efficient administration, reorganization, and intelligent division. All right? अब ये क्या था? ये यही था कि जो है आजकल जो डिबेट चल रही है कि जो साउथ पंजाब है, पंजाब को ब्रेक किया जाए, साउथ पंजाब को अलग किया जाए, ऑन व्हाट ग्राउंड्स? ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स, राइट? आजकल ये डिबेट आप सब लोगों ने सुनी होगी कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे ये काफी डिबेट चल रही है, पॉलिटिकल साइड कह लें या कोई भी, लेकिन इट इज वेरी वोकल. इवन इट वाज इन द मैनिफेस्टो ऑफ दिस पार्टी व्हिच इज रूलिंग राइट नाउ. So at that time in 1905, or before, even before 1905, it was an idea that Bengal, which was admittedly a large province, उसको ब्रेक किया जाए. ब्रेक कैसे करते हैं वो अब देखते हैं हम आगे, कैसे ब्रेक करते हैं वो. लेकिन ब्रेक क्यों करते हैं? ताकि एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन मिले, रीऑर्गेनाइजेशन मिले और इंटेलिजेंट डिवीजन हो. क्यों? क्योंकि उनकी रिट ऑफ द गवर्नमेंट स्ट्रांग हो. जब आपके पास एक बहुत बड़ी एरिया हो और रूल करने के लिए जो है आपके पास लोग कम हो, तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली यही होगा कि आपकी रिट स्ट्रांग नहीं होगी गवर्नमेंट की. ठीक है, जब गवर्नमेंट की रिट स्ट्रांग नहीं होगी तो जब रिट स्ट्रांग नहीं होगी गवर्नमेंट की, तो उसमें ये होगा कि आप ऑटोमेटिकली जो है वो वीक होते जाएंगे. सो अंग्रेज जो थे वो बंगाल में वीक होते जा रहे थे, और इस वीक होने की यही रीजन था कि इनकी रिट स्ट्रांग नहीं थी. रिट स्ट्रांग क्यों नहीं थी? क्योंकि एरिया बहुत बड़ा था. जब एरिया बहुत बड़ा होगा और आपके लोग कम होंगे तो देयर वुड बी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स. So the Lieutenant Governor of Bengal had to administer the area of 189,000 square miles, all right, which includes today's Bangladesh as well, and the Bengal, which is in India, all right, जिसमें ये कोलकाता वगैरह आता है. So ये पूरा एक बड़ा एरिया गवर्नर को मेंटेन करना पड़ता था, लेफ्टिनेंट गवर्नर को. ठीक है, सो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि भाई मेरी बस हो गई है, अब आप इसको ब्रेक करें, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करें ताकि जो है हम कर सकें, इसको एडमिनिस्टर कर सकें. By 1903, the population of Bengal had been rising to 78.5 million. All right, this is for MCQs. Consequently, many districts had been neglected because of isolation and poor communication, which made good governance impossible. ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ. ठीक है, Kolkata and its nearby district
attracted all the energy and attention, क्योंकि ये जो है काफी नियरर थे इंडिया के, उस वक्त आज के इंडिया के नियरर थे, और ये काफी जो है वो रिच थे, तभी ये जो है सारी जो डेवलपमेंट वर्क होता था वो यहाँ पे होता था, ठीक है। The condition of peasants was miserable due to absence of good governance. जहाँ भी आपकी bad governance होती है वहां पे आपकी आपके all together across the board लोग जो हैं वो सफर करते हैं, not only peasants but across the board जो भी लोग होते हैं वो they suffer a lot. Okay, so especially in East Bengal, in countryside. In countryside, so cut off by river and creeks, no special attention had been paid to peculiar difficulties of police work. All right, there was a problem of famine, of defense, and of linguistics and logistics. It must be logistic, right? All right, since the East Bengal, which was in the countryside, since it was it did not have proper infrastructure, all right, it did not have the defense, it did not have that particular privileges so that it can prosper, right? So ये प्रॉस्पर जब नहीं हो रहा था तो ऑटोमेटिकली फेमिन होगा वहां पे डिफेंस इश्यूज होंगे, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस खराब थी, वहां पे आपकी जो रिवर्स थी उन्हें फ्लड्स वगैरह आते थे, एंड ये वो सारा कुछ। तो ये सारे मसलों को जो टैकल किसने करना था, वो ब्रिटिश ने करना था, राइट। अब ब्रिटिश ने किस तरह इसको मेंटेन किया, ब्रिटिश ने इसको डिवाइड किया दो हिस्सों में। वन पार्ट वाज ईस्ट बंगाल विद 54 मिलियन पॉपुलेशन, जिसमें 42 मिलियन आपके हिंदूज थे और 9 मिलियन मुस्लिम्स थे, राइट। Eastern Bengal and Assam with the population of 31 million, 12 मिलियन आपके हिंदूज थे और 18 मिलियन मुस्लिम्स थे। मतलब आसाम वाली जो जगह थी आपके, सॉरी ईस्टर्न नहीं था, ये ईस्टर्न था, और वो जो है आपका आज का जो बंगाल इंडिया में वो था, ठीक है। इट इज अ टाइपोग्राफिकल एरर। ऑलराइट, सो you see that in number 2, Eastern Bengal and Assam, the population of 31 million, उस 31 million में से आपके 18 million जो हैं वो Muslims हैं और 12 million Hindus हैं, alright? It means that the Muslims were in majority in that particular area, alright? Okay. Okay, what were the objectives of this partition? I have already discussed those objectives. मैंने डिस्कस कर चुका हूँ काफी डिटेल में कि रिलीविंग ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स, मैंने डिस्कस किया कि काफी एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफी मुश्किल लग रहे थे, ऑलराइट। एंड देन डेवलपमेंट ऑफ आसाम रूल्ड बाय चीफ कमिश्नर, आसाम की डेवलपमेंट को पॉसिबल बनाया गया, ताकि उसको ब्रेक जब किया तो उसको पॉसिबल बनाया गया। एंड यूनाइटिंग स्कैटर्ड ग्रुप। Now what do we mean by scattered group? Scattered group, जब भी आपकी जो bad governance होती है, जब भी whenever there is bad governance, there is always the rise of those groups which voice for their rights, all right? So जब आपके groups scatter हो जाते हैं, अपने rights का demand करते हैं, then automatically you see that उसमें ये चीजें problems होते हैं। सो इन प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए स्कैटर्ड ग्रुप्स जो हैं उनको यूनाइट करने के लिए ये पार्टीशन किया गया, राइट। देयर वर फर्दर प्रपोजल्स टू सेपरेट चिटागोंग एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ढाका फ्रॉम बंगाल एंड अटैच देम टू आसाम, राइट। मुस्लिम्स पे क्या इफेक्ट आया इस पे? Why do we call it a momentous movement for Muslims? ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था, या तो ये एक नॉर्मल अंग्रेजों का डिसीजन था जो कि उन्होंने लिया अपने फायदे के लिए, हमारे फायदे के लिए नहीं लिया था, ठीक है। अल्टीमेटली उनको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन सुधारनी थी, लेकिन इसके इफेक्ट्स जो थे वो काफी पॉजिटिव थे। हाउ? मुस्लिम पीजेंट्री जो थी, जो कि क्रश की गई थी हिंदू लैंडलॉर्ड की, उन्होंने साय ऑफ रिलीफ लिया, ताकि
क्योंकि उन पे अटेंशन आई। जब उन पे अटेंशन आई और ये पार्टीशन हुआ तो काफी हिंदू लैंडलॉर्ड्स जो थे वो वहां भी उस साइड चले गए थे, बिकॉज हिंदूज वर इन मेजोरिटी ओवर देयर। ठीक है। गॉट रिड ऑफ पायरेट्स ऑन रिवर्स। नाउ यू रिमेंबर जब हम रिवर की बात कर रहे थे, जब हम रीजंस की बात कर रहे थे कि ये भाई पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों सेपरेट हुआ, तो उसके रीजंस में ये भी था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफी वीक थी। So whenever you have weak law and order situation, you create a वैक्यूम पावर का वैक्यूम होता है, और उस पावर के वैक्यूम को ओवरकम कर रहे थे आपके लोकल जो ठग्स होते हैं वो और पायरेट्स रिवर्स पे। एजुकेशन फंड्स बढ़ाए गए थे। ठीक है। मुस्लिम्स की एजुकेशन पे काफी खर्चा किया गया। ठीक है। और हेल्प बूस्ट बंगाली लिटरेचर एंड लैंग्वेज। मुस्लिम मेजोरिटी एरिया गिवन टू मुस्लिम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। I would consider it as the major benefit or the major effect on Muslims. Why? Because Muslims before partition of Bengal did not have any idea कि separate homeland या separate area का भी कोई एक influence होता है। ठीक है। मतलब एक देखा होगा आपने कि डिफरेंट एरियाज जो होते हैं जिसमें आप मेजोरिटी में होते हो, उसमें यू फील टू बी सेफ एज कंपेयर टू अदर एरियाज, राइट। ये एक नेचुरल ह्यूमन फिनोमेना है, सेल्फ हेल्प का फिनोमेना, जहां से वो मतलब उससे वो निकलता है। सो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया दिया गया उनको फर्स्ट टाइम के लिए। सो ये तो एक 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 ब्लेसिंग इन डिस्कस थी मुस्लिम्स के लिए। जब हिंदूज ऑफ दैट टाइम, whenever I say हिंदूज मतलब आज के नहीं, हिंदूज ऑफ दैट टाइम, राइट। हिंदूज ने जब देखा, सो उन्होंने उनको पहले तो ये हुआ कि भाई मुस्लिम्स जो हैं वो मेजोरिटी में आ गए असम की एरिया में, राइट। सो उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया इस आइडिया को उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया। जब अपोज किया, देन there was a hue and a cry within the centers of Hindus कि भाई ये अपोज भाई आपने पार्टीशन क्यों किया है। जब उन्होंने पार्टीशन किया और अपोज होना शुरू हुआ, सो इट एक्सपोज्ड हिंदूज इन फ्रंट ऑफ मुस्लिम्स। इससे पहले जो मुस्लिम समझते थे कि हिंदूज जो हैं वो उनके भाई हैं, वो उनके दोस्त हैं, वो उनके नेबर्स हैं और वॉट एवर है। लेकिन जब ये पार्टीशन पे स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन देखा, सो इट हिंदूज वर एक्सपोज्ड, हिंदूज ऑफ दैट टाइम, राइट। सो इट इज स्ट्रांगली अपोज द आइडिया। डिवाइड एंड रूल मिथ का एक बनाया गया था कि भाई हमें डिवाइड किया गया है और हम पे रूल किया गया है। ठीक है। अल्टीमेटली इट वाज अ डे ऑफ मॉर्निंग फॉर being celebrated by Hindus. देन लॉर्ड कर्जन जो उस जमाने में जिन्होंने इम्प्लीमेंट कराया, वो उन पे असैसिनेशन अटेम्प्ट्स आई। ठीक है। ब्रिटिश गुड्स को बायकॉट किया गया, जिसके रिजल्ट में स्वदेशी मूवमेंट शुरू की गई। ऑलराइट। ब्रिटिश क्लोथ वाज थ्रोन इनटू बॉनफायर्स इन साइन ऑफ प्रोटेस्ट। वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए। वंदे मातरम एज अ क्राई प्रोटेक्टिंग वर्शिप ऑफ शिवाजी एज अ नेशनल हीरो, राइट। ये सब इफेक्ट्स हुए और ये सब अटेम्प्ट हिंदूज ने किए। क्यों? क्योंकि इस पार्टीशन को दोबारा रिवर्ट बैक किया जाए। अब देखते हैं वो सक्सेसफुल हुए नहीं हुए। इंडियन नेशनल कांग्रेस आल्सो अपोज्ड पार्टीशन। नाउ यू सी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1885 में बनाई गई थी, यहां से मतलब 1905 से 20 साल पहले बनाई गई थी। क्यों? क्योंकि हिंदूज और मुस्लिम्स की एक पार्टी होनी चाहिए। लेकिन अब इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या कर रही है, वो पार्टीशन ऑफ बंगाल को अपोज कर रही है बिकॉज दिस आइडिया वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिंदूज। Now you see that how Congress is changing its perspective from United India to Hindu Party. All right. As a result, partition was annulled in 1911. 1905 में पार्टीशन हुआ और 1911 में वो वापस रिवर्ट हो गया। लेकिन this resulted into birth of Muslim League in 1906 at first. दूसरा ये हुआ कि मुस्लिम्स को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग प्रोड्यूस हुआ मुस्लिम्स में।
एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग किस लिए कि हम भी अलग रह सकते हैं. We can also have separate area in which we can rule. अब भी देखें पाकिस्तान का नाम नहीं आया है. I'm not talking about Pakistan. I'm talking about that a separate that the concept of separate area for Muslims is given by British themselves. क्योंकि उनको पार्टीशन के बाद जब एक सेपरेट एरिया मिली तो उनकी सिचुएशन इंप्रूव हुई. कैसे सिचुएशन इंप्रूव हुई? वो पायरेट्स खत्म हो गए, लिटरेचर में खर्चा हुआ, एजुकेशन फंड्स बढ़ाए गए और हिंदू लैंडलॉर्ड जो कि जुल्म करते थे उनसे जान छुड़ाई गई. सो यू सी दैट इन वन वे और अदर द रिजल्ट इज पॉजिटिव व्हेन वी टॉक अबाउट मुस्लिम्स, राइट? देन केम शिमला डेपुटेशन. It was first step down the road leading to the formation of Pakistan. I would not say Pakistan, I would say the separate homeland. All right. It was organized by Muslim leaders who met Governor General and Viceroy Lord Minto in Simla on 1st October 1906. उससे पहले कैसे मिलते थे? उससे पहले they used to meet Viceroy or Governor General through Indian National Congress. It was first time that the Muslim leaders, skipping the platform of Congress, which was already there, they are meeting with the Governor General and the Viceroy in their separate capacity. All right. Aim was to win the sympathies of Raj on their sides concerning matters. Secretary Morley announced in the House of Commons reforms concerning the Indian Constitution. Since the constitution was being made in 1909, ठीक है. अब कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो मुस्लिम्स डिड नॉट ट्रस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस. व्हाई? बिकॉज इट वाज already opposing the idea of partition of Bengal. So Muslims were of the opinion कि भाई जब वो हमें सपोर्ट ही नहीं करते, when they do not recognize us as a separate nation, so why should we go and follow them? We should meet with the Viceroy, we should meet with the Governor General and get their sympathies so that they can incorporate something in our favor in the constitution, which was being made in the Minto-Morley reforms. जब हम constitutional development पढ़ेंगे, then we will discuss in detail about Minto-Morley reforms और वो demands जो कि शिमला डेपुटेशन में रखी गई थी, वो मिंटो-मॉर्ले रिफॉर्म्स में इनकॉर्पोरेट हुई थी. ठीक है, आज का टॉपिक नहीं है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में हम पढ़ेंगे. डिमांड्स क्या थी? डिमांड्स उस जमाने में क्या हो सकती हैं? उस जमाने में यही होंगी कि नौकरी दो, यूनिवर्सिटी दो, सेपरेट इलेक्टोरेट दो, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दो. ठीक है. नाउ लेट्स सी एम्प्लॉयमेंट ऑफ मुस्लिम्स. There should be employment opportunities to Muslims in judiciary, civil administration, and military. Muslims should be given higher posts. Now you see that the employment जो कोटा है, आज की हमारी जो कोटा होती है, मतलब पाकिस्तान में अगर हम कोटा देखें तो सिंध की कोटा अलग है, बलूचिस्तान की कोटा अलग है, CSS में, PMS में, जिसमें भी मतलब जो भी फेडरल रिलेटेड जॉब्स होंगी उसमें कोटा होती है हर सूबे की, राइट? सो मुस्लिम्स वर डिमांडिंग दैट पर्टिकुलर कोटा. कोटा क्यों होती है? बिकॉज जब कोई एरिया इक्वल नहीं होते, जब एरियाज इक्वल नहीं होते या नेशंस इक्वल नहीं होती, जैसे हिंदूज जो थे वो एजुकेटेड थे और मुस्लिम्स जो थे वो थोड़े से पीछे थे एजुकेशन के हवाले से, सो दे वांटेड द स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फॉर मुस्लिम्स इन जुडिशरी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री, कि उनको हायर पोस्ट भी दी जाए ताकि वो प्रॉस्पर कर सकें, एजुकेशन आ सके, दे कैन मेक और दे कैन कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर देयर सोसाइटी. ठीक है. रिप्रेजेंटेशन इन यूनिवर्सिटीज, उन्होंने कहा कि स्पेशल सीट्स जो हैं वो म्युनिसिपल सीट्स एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में रखी जाएं और यूनिवर्सिटीज में रखी जाएं. ठीक है. सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब इलेक्टोरेट जो होता है वो होता था पॉपुलेशन के हिसाब से, कि अगर हिंदूज की पॉपुलेशन फॉर सपोज किसी एरिया में है, फॉर सपोज एक एरिया है जिसमें
10,000 लोग रहते हैं, ठीक है। अब 10,000 लोग जो रहते हैं उनमें से एक जो है वो एमपीए बन सकता है। फॉर सपोज एक हम सपोजिशन देते हैं, 10,000 लोग में से एक एमपीए बनेगा। उन 10,000 लोगों में से 6,000 लोग आपके हिंदूज हैं और 4,000 आपके मुस्लिम्स हैं। अब अगर 6,000 वोट्स जो हैं, एक हिंदू रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है और एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है। 6,000 वोट्स जो हैं, 6,000 वोट्स जो हैं कहा था जी, 6,000 वोट्स आपका एक हिंदू रिप्रेजेंटेटिव को मिलते हैं और 4,000 वोट्स आपके मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को मिलते हैं। सो इट मींस कौन जीतेगा? वही हिंदू रिप्रेजेंटेटिव जीतेगा। सो मुस्लिम्स वर डिमांडिंग कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दी जाए ताकि हम जितने भी हैं, हम 1,000 हैं, 2,000 हैं, तो उनमें से हमारा एक 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 बंदा आना चाहिए। नॉट विद द पॉपुलेशन रेशियो, जब क्योंकि पॉपुलेशन रेशियो की अगर बात करते हैं तो पॉपुलेशन रेशियो में वी आर ऑलरेडी इन माइनॉरिटी। Since we are in minority, then how can we compete with the local population or with the other candidates? Then they demanded sufficient number of Muslims should be there in Imperial Legislative Council, जिसमें ज्यादातर members जो हैं वो select करते थे आपके ब्रिटिश। मुस्लिम यूनिवर्सिटी वॉज डिमांडेड। कल हमने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जब हम पढ़ रहे थे तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की डिमांड शिमला डेपुटेशन में रखी गई थी, ठीक है। yesterday we were studying about अलीगढ़। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, the three factors that Muslims were away from Congress, there were three factors। एक तो सर सैयद की एडवाइस, we discussed yesterday। दूसरी हिंदूज एजिटेशन। एजिटेशन किस साइड पे कि हम ये नहीं करेंगे, तब स्वदेशी मूवमेंट थी, तब जो है वो आपकी डिफरेंट वंदे मातरम मूवमेंट थी। सो ये सब जो मूवमेंट आई गई थी, दे वर नॉट टॉकिंग अबाउट द यूनिटी ऑफ इंडिया, इंडियन मुस्लिम्स और इंडियन हिंदूज, दे वर ओनली टॉकिंग अबाउट हिंदुइज्म। इट मींस वो दीन को लाना चाह रहे थे। They weren't concerned about society, they were concerned about their religion, all right। So ultimately तीसरा रीजन ये था कि they were biased। कांग्रेस biased कैसे थी? क्योंकि कांग्रेस did not want the prosperity of Muslims। So as a result of their biasness, All India Muslim League was founded in 1906। Devanagari script and Hindu language were declared as official in Uttar Pradesh by 1900। Okay, मतलब आपकी जो उत्तर प्रदेश में पहले, इनसे पहले फारसी होती थी, वहां उनको रिप्लेस किया गया था देवनागरी स्क्रिप्ट से और हिंदू लैंग्वेज से, राइट। ये भी जो है इट वाज अ साइन ऑफ ऑपोजिशन टू मुस्लिम्स, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम्स जो थे उस वक्त उर्दू और फारसी बोलते थे। On 30th December 1906, the annual meeting of Muhammad Educational Conference was held at Dhaka under the chairmanship of Nawab Wakarul Mulk। 3,000 delegates attended that. That is also the MCQs, which you can remember। Nawab Salimullah proposed to establish a political party to safeguard the interest of Muslims। नवाब सलीमुल्लाह ने प्रपोज किया कि we are done with the Congress and we want our own political party। रीजंस हम डिस्कस कर चुके हैं, कौन कौन से रीजंस थे और कौन कौन से रीजंस आगे हो सकते हैं पार्टी स्टेब्लिश करने के। उस पार्टी का जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में रखा गया। सर आगा खान को फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था। इनिशियल मेंबरशिप 400 थी। These all are MCQs। Objectives, there were three objectives, the basic three objectives। One was to inculcate among Muslims a feeling of loyalty to the government and to disabuse their mind of misunderstanding
and misconception of its action and intention. ठीक है, अब ये जो सर सैयद अहमद खान का एक ऑब्जेक्टिव था, उन्होंने किताबें लिखी, लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया, वो सारी किताबें जो थी वो इसी कॉन्सेप्ट पे रिवॉल्व करती थी कि एक फीलिंग ऑफ लॉयल्टी दी जाए मुस्लिम्स की तरफ से ब्रिटिश लॉर्ड्स को कि भाई वी आर नॉट डूइंग एवरीथिंग, वी आर नॉट अलोन इन disabusing it, we are not, we are a party but we are not alone. ठीक है, their minds of misunderstanding and misconception of its action and intention. ठीक है, to number 2, to protect and advance the political rights and interest of the Muslims of India and to represent their needs and aspirations to the government from time to time. Right, मतलब इनको प्रोटेक्ट करना था और एडवांस करना था पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट को, मुस्लिम्स को, ठीक है, एंड उनकी नीड्स को, नीड्स एंड एस्पिरेशंस जो थी, those were not being represented by the Indian National Congress because it was already being dubbed as the party of Hindus of that time, right? So Muslims को अपनी डिमांड्स आगे रखने के लिए they had to make another political party कि अपनी डिमांड्स, नीड्स, एस्पिरेशंस जो भी हैं वो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को दी जाए. एंड सिंस इट वाज द टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी, जब यू नो इलेक्शंस हो रहे थे एंड Indians were given due share, Indians were given the representation in political arena of United India, या कह लें कि इंडिया ऑफ द इन द सबकॉन्टिनेंट, राइट, to prevent the rise of hostilities in Muslims towards other nationalities. So see, since Muslims were also divided, हर nation जो है वो divided थी उस टाइम पे. Muslims were also divided like Hindus. So उनकी डिवीजन को अलग करने के लिए, उनकी डिवीजन को खत्म करने के लिए एक पार्टी ये जो बनी थी उसका ये भी एक ऑब्जेक्टिव था कि इनकी डिवीजन को खत्म किया जाए. ऑलराइट, रोल ऑफ मुस्लिम लीग इन क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये सवाल भी आ सकता है कि एक ये सवाल आ चुका है वैसे कि आप बताएं कि मुस्लिम लीग का क्या रोल था. सो यू विल बी मेंशनिंग इट फ्रॉम द टाइम टू टाइम. हम इसको टाइम टू टाइम देखते आएंगे कि मुस्लिम लीग ने क्या क्या किया. ऑल्दो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे आगे जाके. हम अभी तक 1906 तक पहुंचे. we'll be moving on. Number 1 was separate electorate. ठीक है, ये जो डिमांड कर रहे थे शिमला डेपुटेशन में, वो हम देखते हैं कि उनको कब मिलती है सेपरेट इलेक्टोरेट. लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट वाज गिवन अल्टीमेटली. एफर्ट्स फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, लखनऊ पैक्ट जो था वो भी एक काविश थी. जब हम लखनऊ पैक्ट डिस्कस करेंगे तो हम लखनऊ पैक्ट में देखेंगे कि कैसे वो हिंदूज जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को मानते ही नहीं है और कैसे वो उनके साथ हाथ मिला लेते हैं अपने फायदे के लिए. एंड दैट वाज द पॉइंट जहां हिंदूज ने फॉर्मली और पॉलिटिकली एक्सेप्ट किया था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इज अ कॉम्पिटिटर, इज आवर कॉम्पिटिटर और इज आवर सिस्टर पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है. देन देयर वाज साइमन कमीशन 1927. It had no Indian members but only 6 British members. All right. There is no break, Afaq, because since we have less time, तो नमाज आप थोड़ी देर के बाद पढ़ लें, क्लास खत्म होने वाली है. It had no Indian members but only 6 British members. This was greeted with strong protest but split in Jinnah group and Shafi group. Result किया उन्होंने. ठीक है. तो जिन्ना के 14 पॉइंट्स जिन्ना साहब के जो आए, that was also the platform of All India Muslim League. ठीक है. स्केच ऑफ मुस्लिम स्टेट जो है, इलाहाबाद एड्रेस, इलाहाबाद एड्रेस भी we will discuss. इलाहाबाद एड्रेस में क्या हुआ था. ठीक है. फिर डे ऑफ डिलीवरेंस जो था 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन किया था. That was also due to All India Muslim League, क्योंकि इस पार्टी के बनने के बाद अब मुसलमान जो थे वो खुल के सियासत कर सकते थे. You know, it was all politics that
enabled people or enabled the Muslims of that time to fight for their rights. ठीक है, अब आप बात नहीं कर रहे, हम सेपरेशन की अभी तक हम बात नहीं कर रहे, अभी तक हम बात कर रहे हैं कि उनको इलेक्टोरेट मिला या उन्होंने इलेक्टोरेट डिमांड किया शिमला डेपुटेशन में। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी डिमांड्स बढ़ाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप सेपरेट इलेक्टोरेट समझें। देन देयर वाज पाकिस्तान रेजोल्यूशन, ठीक है, जिसको हम लाहौर रेजोल्यूशन भी कहते हैं, इसमें पाकिस्तान का जिक्र किया गया था। देन क्रिप्स मिशन रिजेक्ट किया, जो हमने कांग्रेस ने भी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भी। देन डिवाइड एंड क्विट रेजिस्टेंस बाय बोथ ऑफ द पार्टीज। सो ये सारी जो अचीवमेंट थी, दोज ऑल वर क्रेडिटेड टू ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, let's just open another PowerPoint presentation and then we move on. All right. Lucknow Pact. Now you see, since the Minto-Morley reforms were there, but those reforms still did not provide it with the political autonomy to the Muslims. The writ of the state deteriorated after annulment of partition of Bengal. जब पार्टीशन ऑफ बंगाल अनल हुआ था 1911 में, तो जाहिर है ह्यू एंड क्राई तो होगा। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था तभी ह्यू एंड क्राई हुआ था हिंदूज की तरफ से। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल अनल होगा तो ह्यू एंड क्राई होगा मुस्लिम्स की तरफ से। मुस्लिम फेल्ट betrayed. Why they felt betrayed? Because they supported Hindus in the foundation of foundation of Congress. ठीक है, जब कांग्रेस में जब उसकी फाउंडेशन हो रही थी, so it was meant to be the party for Hindus as well as Muslims. But since that particular party betrayed, that particular party opposed the idea of foundation or idea of separation, so Muslim felt betrayed. Same administrative machineries continued जो कि थी। British succumbed to the Hindu pressure. जो भी मैं प्रेशर आपको बताता आया हूं कि वो प्रेशर कौन सा था, वो हिंदूज का प्रेशर था, जिसके प्रेशर में वो आके जो है फिर उनको अनल किया था। ठीक है, let's move on. The inclusion of Muhammad Ali Jinnah, the chief proponent of Hindu-Muslim unity in All India Muslim League in 1913, and Lord Chelmsford's invitation to Indian politicians for suggesting post-World War I reforms. 1 minute. Made agreement possible. All right. लखनऊ पैक्ट क्या था? लखनऊ पैक्ट यही था कि एक यूनियन बनी थी, एक पैक्ट बना था हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में। एक ज्वाइंट सेशन हुआ था लखनऊ में। ठीक है, ज्वाइंट सेशन में क्या था कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने उनको इनवाइट किया था इंडियन पॉलिटिशियंस को कि वो आए और पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 जो है उनकी रिफॉर्म्स के बारे में हमें बताएं कि हम क्या करें। और जिन्ना साहब का इसमें बहुत बड़ा हाथ था और उनको चीफ प्रोपोनेंट भी कहा जाता है हिंदू मुस्लिम यूनिटी को। लेकिन लखनऊ पैक्ट का एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ये भी थी कि लखनऊ पैक्ट के प्लेटफॉर्म पे फॉर्मली कांग्रेस जो है वो एक्सेप्ट करती है आपकी मुस्लिम लीग को। Both parties were side by side in discussing the reforms with Lord Chelmsford. ठीक है, मिस सरोजनी नायडू ने टाइटल दिया था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी जिन्ना साहब को। ठीक है, ये भी आपकी एमसीक्यूज में आता है। एंड देन सैलिएंट फीचर्स क्या थे लखनऊ पैक्ट? गवर्नर जनरल shall be head of Indian government. Number 1. There shall be self government in India. ठीक है, 2 permanent under secretaries, 1 must be Indian. अब देखें ये पॉलिटिकल एडवांसमेंट ही कहा जाता है इसको कि वो पॉलिटिशियंस, मतलब हिंदूज कह लें या मुस्लिम्स कह लें, वो पॉलिटिशियंस जो कि कल तक जो हैं वो लेजिस्लेटिव डिमांड कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, सेल्फ गवर्नमेंट होगी इंडिया में। आपका गवर्नर जनरल जो है वो हेड होगा इंडियन गवर्नमेंट का और सेल्फ गवर्नमेंट होगी।
और परमानेंट अंडर सेक्रेटरीज होंगे गवर्नर जनरल के अंडर, इसमें से एक इंडियन होगा। मतलब व्हेन यू सी दैट अगर आपके दो फेडरल मिनिस्टर हो, इसमें से एक जो है वो लोकल हो और एक जो है वो ब्रिटिश हो, तो ये एक पॉजिटिव जेस्चर है आपकी आपकी जो है वो सियासत का। ठीक है, मुस्लिम शुड बी गिवन 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन द सेंटर। अब ये डिमांड कौन कर रहा है? व्हाई डू आई कॉल इट एज अ टर्निंग पॉइंट? टर्निंग पॉइंट इसलिए मैं इसको कहता हूं कि ये डिमांड मुस्लिम्स नहीं कर रहे, ये डिमांड एक यूनाइटेड पॉलिटिशियंस कर रहे हैं इंडिया के, जिसमें हिंदूज भी हैं, जिसमें मुस्लिम्स भी हैं। इट मींस के हिंदूज ने एक्सेप्ट किया कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स को मिलनी चाहिए। ठीक है ना? देखिए ना, एक अगर आप किसी को कहते हैं कि भाई, कहते हैं कि मैं आपको मानता ही नहीं, जब आप एक बंदे को मानते ही नहीं है और आप उसके साथ घूम फिर रहे हैं, इट मींस दैट आप उसको मानते हैं। सो मुस्लिम्स की डिमांड रखना 1/3 की, और ये डिमांड इंडियन पॉलिटिशियंस से आना जिसमें हिंदूज भी हैं, इट इज अ पॉजिटिव साइन कि वो चाहते हैं कि भले मुस्लिम्स भी आए और हम यूनाइटेड हों। यूनाइटेड क्यों हों? क्योंकि डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी स्टैंड। राइट, ये कॉन्सेप्ट आ गया था लखनऊ पैक्ट में। तब वो डिवाइडेड नहीं थे, वो यूनाइटेड थे। और उन्होंने कहा कि जो गवर्नर जनरल की जो सैलरी है वो ब्रिटिश एक्सचेकर से जाएगी, नहीं ना ही हमारे एक्सचेकर से, ना ही इंडियन पैसों से नहीं जाएगी, बल्कि क्योंकि ये काम ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए करता है गवर्नर जनरल, तो इसकी जो सैलरी होगी वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ही देगी। देन सिक्स्थ डिमांड वाज सेपरेट इलेक्टोरेट, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। एट द प्रोविंशियल लेवल 4/5 of the members of the legislative assembly councils should be elected and 1/5 should be nominated. Right? ये भी एक डिमांड काफी वैलिड थी कि जो 4/5 होंगे वो लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्टेड होंगे। मतलब एक चार हिस्से, 5 में से 4 हिस्से जो हैं वो लोकल्स आएंगे, और 5वां हिस्सा जो होगा वो नॉमिनेट होगा। वो नॉमिनेट कौन करता था? वो अंग्रेज करते थे, ब्रिटिश करते थे, और वो ब्रिटिश ही होते थे। ठीक है, इंडियन काउंसिल मस्ट बी अबॉलिश्ड, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली बन रही थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का जिक्र हो रहा था, तो इंडियन काउंसिल को अबॉलिश करने की डिमांड आई। डिमांड फॉर इंक्रीज्ड रिप्रेजेंटेशन इन सेंटर एज वेल एज प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, क्योंकि जब आपकी रिप्रेजेंटेशन लोकल्स की ज्यादा होगी तो लॉ मेकिंग में लोकल्स का ज्यादा हाथ होगा। जब लॉ मेकिंग में आपके लोकल्स बैठे होंगे तो इट मींस कि उनको पकड़ना भी आसान है और उनसे अपने काम लेना भी आसान है। एक्सक्यूज मी। Judiciary should be separated from executive. क्यों? क्योंकि executive used to come under the British lords, alright? तो उन्होंने कहा कि जो जुडिशरी है वो आप इंडिपेंडेंट करें, क्योंकि अगर ब्रिटिश लॉर्ड्स या उनके जो ऑफिसर्स हैं वो अगर हम पे जुल्म करते हैं तो हम जुडिशरी के पास तो जा सके, तो इट मस्ट बी सेपरेटेड, इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट। देन केम रॉलेट एक्ट in 1917. Government of India instigated the cause of terrorist activities in subcontinent. Sir Sidney Rowlett was entrusted with the task. क्या टेररिस्ट एक्टिविटी जब हुई 1917 में, तो सर सिडनी रॉलेट को भेजा गया इस टास्क के लिए कि आप जो हैं वो देखें, रिपोर्ट बनाएं कि रीजंस क्या थे टेररिस्ट एक्टिविटी के। राइट, the report resulted in the act of parliament on 23rd March 1990 known as crimes act of 1990. Alright, क्या था उसमें? उसमें ये था कि अक्यूज्ड, अब ये रिपोर्ट को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना रहे हैं। अक्यूज्ड टू प्रूव हिम गिल्टी, अदरवाइज प्रूव हिम नॉट गिल्टी, अदरवाइज ही वाज कंसिडर्ड गिल्टी। भाई ये क्या, ये कौन सा लॉजिक है? अक्यूज्ड टू प्रूव हिम नॉट गिल्टी, अदरवाइज ही वाज कंसिडर्ड गिल्टी। Prosecution was allowed to present witness of a dead person if so required. मतलब एक बंदा मर गया है, वो कैसे विटनेस होगा? Alright? No services of advocates was allowed. No right to appeal if punished.
मतलब ये तो डिक्टेटोरियल कानून थे, ये तो डिक्टेटोरियल कानून हुए ना कि आप अगर किसी को गिल्टी कर रहे हो तो वो उसको प्रूव करना होगा कि वो गिल्टी नहीं है। अब वो कैसे प्रूव करेगा? उसको राइट टू अपील भी नहीं है, पनिश अगर उसको पनिश किया गया, ठीक है, एडवोकेट्स भी नहीं रख सकता, कैसे प्रूव करे वो? So it was a dictatorial attempt uh, which was made law by British government. People started protest and showed great resentment against this injustice. Obviously, जब आपने इतना पॉलिटिकली उनको एडवांस कर दिया है और उसके ऊपर आप इतने इतने सारे जो हैं वो कानून लाते हो, तो इट मींस कि इट वुड बी faced with resentment against this injustice. Then Gandhi launched a movement of Satyagrah against the act and called for countrywide strikes. Jinnah resigned from this membership of central legislature. ठीक है, रिजाइन मतलब एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट जिन्ना साहब ने रिजाइन कर दी। गांधी साहब जो थे उन्होंने कंट्री वाइड स्ट्राइक शुरू कर दी। दीज एक्ट्स गेव फायर टू जालियांवाला बाग ट्रेजेडी। ठीक है, जालियांवाला बाग ट्रेजेडी क्या थी? ऑन 6 अप्रैल 1919 गांधी कॉल्ड फॉर स्ट्राइक। गवर्नमेंट बैंड गांधीज एंट्री इन पंजाब। लार्ज प्रोटेस्ट वर हेल्ड अगेंस्ट रॉलेट एक्ट इन लाहौर एंड अमृतसर। ठीक है, on 9th April 1919, Dr. Satyapal and Saifuddin were arrested. Protest meeting was held on 13 April 1919. British termed this meeting as illegal. जब इस मीटिंग इलीगल करार दिया गया तो ब्रिटिश ट्रूप्स ने क्या किया? निहत्थे लोगों पे फायरिंग शुरू कर दी। In 10 minutes of firing, 379 people were killed and 1200 injured. मतलब देखें कि ये इंसिडेंट इतना एक वोकल हो गया था कि आप एक जो प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट है, उसको आप इलीगल टर्म करके आप अनआर्म्ड लोगों पे फायरिंग करते हो और तकरीबन 400 लोग मारे जाते हैं और 1200 लोग इंजर होते हैं। तो यू सी इट इज अ बिगेस्ट ट्रेजेडी, जो कि ऑलरेडी एक हालात खराब हैं, ऑलरेडी जो है आपकी स्ट्राइक चल रही हैं अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, और उसके ऊपर आप जो है ये ट्रेजेडी कर लेते हो। देन उसके ऊपर जो है एक इवेंट आता है जो कि मुस्लिम्स के लिए काफी एक टर्निंग पॉइंट होती है मुस्लिम्स के लिए। ऑल्दो इट वाज एन इंटरनेशनल इवेंट, लेकिन उसके इफेक्ट जो हैं वो मैनीफोल्ड होते हैं इंडियन मुस्लिम्स के लिए। खिलाफत मूवमेंट। The glory of Ottoman dwindled during 18th century and empire came to be known as a sick man of Europe. Ottoman Empire की जो ग्लोरी है वो काफी dwindle करती जाती है और जो है इसको सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता है, क्योंकि इसमें कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे, इसमें फेमिन शुरू हो गया था, ये डिवाइडेड था, कंट्रोल नहीं रहा, जो लेटर ऑटोमन्स थे उनका कंट्रोल नहीं रहा। ठीक है, The Ottoman Empire joined hands with Germany and had to face the corollaries after Great Britain defeated Germany and her allies in World War I. जब जर्मनी ने डिफीट देखा, देन ऑटोमन एम्पायर भी उनकी पार्टी था। जब उनकी पार्टी था तो इट हैड टू फेस द म्यूजिक, राइट। जब उन्होंने म्यूजिक को फेस कर रहे थे तो ऑटोमन एम्पायर खत्म हो चुका था, और क्योंकि ऑटोमन एम्पायर हमारी खिलाफत थी, हमारा खलीफा था मुस्लिम्स ऑफ दैट टाइम का। ठीक है, तो माइटी एम्पायर जो थे वो हेल्पलेस हो गया था। अब उस हेल्पलेस एम्पायर को बचाने के लिए जो यहाँ के मुस्लिम्स थे उन्होंने खिलाफत मूवमेंट शुरू की। क्यों खिलाफत मूवमेंट शुरू की? बिकॉज दे वर बीइंग रूल्ड बाय ब्रिटिश, और ब्रिटिश जो था उसकी ही जंग थी। वर्ल्ड वॉर वन वाज बेसिकली ब्रिटिश का ही वॉर था। तो ब्रिटिश को वो अपनी जो है वो एक प्रेशर देना चाह रहे थे कि आप जो है वो भले जर्मनी को डिफीट कर चुके हैं, लेकिन आप जर्मनी को भले कंट्रोल करें या जो भी करें या उनकी इफेक्ट्स जो भी हैं वो करें, लेकिन आप खिलाफत को खत्म ना करें। खिलाफत मस्ट बी देयर,
and the Khalifa must be there. जो भी मतलब उनको है वो आप उनको छोड़ दें, बस माफ कर दें. Muslims wanted to preserve the sanctity of Khilafat Islam, जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ. ठीक है. Thus, Muslim leaders of the subcontinent, majority being the member of All India Muslim League, established an organization in 1919, the Khilafat Committee. खिलाफत कमेटी हुई. ठीक है. मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो थे वहां पे उन्होंने आर्टिकल्स लिखे थे. मुस्लिम्स ने कैंपेन शुरू की. ऑब्जेक्टिव्स 3 थे जो मैं एक डिस्कस कर चुका हूं कि ऑटोमन शुड बी केप्ट इंटैक्ट, खिलाफत इंटैक्ट रखी जाए. टेरिटोरियल सॉलिडेरिटी ऑफ टर्की मस्ट बी प्रिजर्व्ड. ठीक है. एंड कंट्रोल ऑफ होली प्लेसेस ऑफ मुस्लिम्स शुड नॉट बी गिवन टू नॉन मुस्लिम. क्योंकि आपने सुना होगा कि एक लार्ज पार्ट था ऑस्ट्रिया हंगरी का और जो है वो उसको कॉन्कर किया गया था और डिफरेंट रीजन जो है या टर्की के जो एक मेजर पार्ट था वो नॉन मुस्लिम को दिया गया था एंड ऑल दैट ब्रेकअप किया गया था. तो वो मुस्लिम फॉर ऑफ द ओपिनियन कि भाई जो हमारे होली प्लेसेस हैं उनको प्रिजर्व किया जाए और खिलाफत को प्रिजर्व किया जाए, इंटैक्ट रखा जाए और सॉलिडेरिटी रखी जाए टर्की की. इवेंट्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट. 27 अक्टूबर 1919 खिलाफत डे मनाया गया था. फिर 23 नवंबर 1919 खिलाफत कमेटी कायम हुई थी. यहाँ के एमसीक्यू से दोनों. ठीक है. Then decision to send delegation to British PM. मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, सैयद सुलेमान नदवी थे और सैयद हुसैन साहब थे. ठीक है. इनको भेजा गया था, डिसीजन लिया गया था कि ये ब्रिटिश पीएम से मिलने जाएंगे. PM Lloyd George on 17th March refused to accept, ये 1920 है, refused to accept the demands that were put forward by delegation. फिर डेलीगेशन वापस आ गई. जब डेलीगेशन वापस आ गई तो they felt helpless, they felt to be neglected, they felt to be cornered. ठीक है. Muslims sought help from Gandhi as they were also annoyed at British due to Punjab atrocities और जालियनवाला बाग इंसिडेंट और ये वो सारा कुछ डिस्कस करते हैं. So as a result कांग्रेस ने भी उनसे हाथ मिला लिया मुस्लिम से और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कर दी. ठीक है. जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुई so during the months of 1921 around 30,000 people were jailed including Gandhi and Johar brothers. ठीक है. चोरा चोरी इंसिडेंट इन फेब 1922 हुआ जिसमें इसके बाद गांधी साहब ने कहा कि भाई मैं अब जो है वो आई विल नॉट बी अ पार्टी टू खिलाफत मूवमेंट और ये जो है ये मुस्लिम्स की जंग है और मुस्लिम्स ही लड़े. नाउ यू सी कि मुस्लिम्स एंड हिंदुइज्म आर बीइंग हिंदूज आर बीइंग सेपरेटेड ऑन द लाइंस ऑफ रिलीजन कि भाई ये मुस्लिम्स की जंग है, ये मुस्लिम्स ही लड़े. Then British government signed Treaty of Lausanne in 1923 जिसमें मुस्लिम्स को सेटिस्फाई किया गया था लेकिन it was not that much effective. लेकिन इसकी क्रिटिकल एनालिसिस हम करें. If I ask you to critically analyze खिलाफत मूवमेंट तो मैं ये कहूंगा कि it was an affirmation of the reality that religion is a mobilizing factor for Muslims and especially Islam. क्यों? क्योंकि रिलीजन ही था जिन्होंने इनको यूनाइट किया खिलाफत के लिए वो लड़े खिलाफत उस्मानिया के लिए और खिलाफत के लिए लड़ने पे उनको ये आया कि देयर इज समथिंग इन देयर यूनिटी. नाउ यू सी दैट यूनिटी को कैसे इंपॉर्टेंट रखा जा रहा है. हिंदू मुस्लिम यूनिटी शॉर्ट लिव्ड है. ठीक है. ये भी एक पता चल गया खिलाफत मूवमेंट से कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो शॉर्ट लिव्ड है क्योंकि जब जालियनवाला बाग इंसिडेंट हो रहा था तब मुस्लिम्स जो थे वो हिंदूज के साथ थे. लखनऊ पैक्ट से लेके खिलाफत मूवमेंट 1924 और 25 तक वो उनके साथ थे. लेकिन हिंदूज ने मुस्लिम्स को सपोर्ट नहीं किया उनके रिलीजियस कॉज के लिए. The movement resulted in reactivation of Muslim League and other Muslim organizations to restart their activities. ठीक है. मतलब उनकी एक्टिविटीज को एक पुश मिल गया था
कि आप अब जो है वो ज्यादा पावरफुल हैं और आप जो है वो एक्टिविटी स्टार्ट करें। मुस्लिम्स लर्न द आर्ट ऑफ लॉन्चिंग मैसिव कैंपेन। क्यों मैसिव कैंपेन? बिकॉज खिलाफत मूवमेंट में उन्होंने एहतजाज किए थे, हड़तालें की थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाई थी एंड ऑल। तो ये मैसिव कैंपेन्स थी, ये एक क्या कहते हैं, बगावत थी हिंदू ब्रिटिश लॉर्ड्स के अगेंस्ट। लेकिन क्रिटिकल एनालाइज जब हम करते हैं तो हम कहते हैं कि यार लीडरशिप गैप भी था। there was no leadership that was interested in making Khilafat movement as stronger as possible. तो हम आज इसको कंक्लूड करते हैं यहाँ पे। फ्रॉम टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग नेहरू रिपोर्ट। हम और हम आगे बढ़ेंगे। नाउ द हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, टाइप करें जिसको भी क्वेश्चन है कोई, एंड आई विल बी आंसरिंग। Yes, the house is open for questions. No questions? सी, जब कोई भी क्वेश्चन नहीं होता तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो कुछ भी समझ में नहीं आया या तो बहुत कुछ समझ में आया। ट्रीटी ऑफ लुसेन में ये था कि उनकी जो लैंड्स थी वो कायम रखी गई थी। खिलाफत उस्मानिया की जो कुछ जमीनें थी वो उनको वापस दी गई थी। और जो है वो क्या कहते हैं कि अ, अ, जो रिलीजियस प्लेसेस थी उनको रखा गया था, सेफ्टी में रखा गया था। राइट। दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाई कांग्रेस अपोज्ड पार्टीशन ऑफ बंगाल? कांग्रेस ने इसलिए अपोज किया था कि चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था, जो कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट था उस वक्त, आपके उत्तर प्रदेश, जब टुडेस उत्तर प्रदेश में वो स्टेट था। अ, उसमें क्या था कि प्रोटेस्टर्स थे जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्लैश कर रहे थे, पुलिस के साथ क्लैश कर रहे थे। ठीक है। तो रिटेलिएशन में डेमोन्स्ट्रेटर ने अटैक किया था और पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, और सारे जो अंदर पुलिस वाले थे वो जल के राख हो गए थे। ठीक है। इंसिडेंट में क्या हुआ कि 3 सिविलियंस की डेथ हुई, 22 पुलिस वाले मारे गए। उस इंसिडेंट से ये हुआ कि महात्मा गांधी वायलेंस के अगेंस्ट थे। उन्होंने कहा कि यार ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये काफी जो है वायलेंट होती जा रही है। जब उन्होंने देखा कि ये वायलेंट हो रही है तो उन्होंने कहा कि नो, वी कैन नॉट डू दैट। तो उन्होंने कहा कि भाई पार्टीशन ऑफ, अच्छा, कांग्रेस ने पार्टीशन ऑफ बंगाल, मैं कह रहा हूँ कि खिलाफत खिलाफत मूवमेंट को अपोज क्यों किया। अच्छा, पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल को इसलिए अपोज किया क्योंकि पार्टीशन के जो पार्टीशन का जो रिजल्ट था वो ये था कि जो आसाम का एरिया था, ईस्टर्न बंगाल और आसाम का जो एरिया था वो मुस्लिम मेजोरिटी बन चुका था। जब मुस्लिम मेजोरिटी बना था तो मुस्लिम्स के पास जो है वो एक अथॉरिटी आ गई थी, और एक प्रॉस्पेरिटी का एक समा आ गया था। हिंदूज की जो जमीनें थी वो काफी अलग एडमिनिस्ट्रेशन में चली गई थी, तो हिंदूज को जो है वो काफी दुश्वारी हो रही थी, और जो एजुकेशन बेटर हो रही थी मुस्लिम्स की, तो इसलिए अपोज किया। यस। कायदे आजम ने इसलिए ज्वाइन नहीं किया था मुस्लिम लीग क्योंकि कायदे आजम स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के, और वो चाहते थे कि जो है मुस्लिम लीग जो है वो अलग नहीं होनी चाहिए और एक कांग्रेस ही होनी चाहिए। तो वो उनका यही ओपिनियन था कि अलग अलग नहीं होनी चाहिए, और वो काफी उन्होंने वर्क किया था लखनऊ पैक्ट में, जैसे मैंने मेंशन किया कि उन्होंने वर्क किया था कि हिंदूज और मुस्लिम को एट एनी इंस्टेंट जो है इनको यूनाइट किया जाए और एक ही पार्टी होनी चाहिए ताकि वॉइस भी एक हो। बेटा, जो एजिटेशन, जो मैंने कहा एजिटेशन वही थी कि
जैसे स्वदेशी मूवमेंट हो गई थी, स्वदेशी मूवमेंट के रिजल्ट में ये हो गया था कि स्वदेशी में दे ऑल वांटेड के हिंदूज की जो प्रॉस्पेरिटी की बात की जाए या हिंदूज की जो डिमांड थी उसकी बात की जाए। तो हिंदूज एजिटेशन का मकसद यही था कि हिंदूज की जो एजिटेशन थी वो मुस्लिम्स के खिलाफ बढ़ रही थी। Why Muslim wanted good relations with British after formation of, देखिए गुड रिलेशंस इसलिए क्योंकि जब तक आपके गुड रिलेशंस नहीं होंगे तब तक जो है आप डिवाइडेड रहेंगे। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी तो थी ना ब्रिटिश की, तो डिवाइड एंड रूल को अवॉइड करने के लिए कायदे आजम साहब ने वर्क किया था कि इनको डिवाइड एंड रूल खत्म किया जाए और मुस्लिम्स और हिंदूज की जो भी अगर दो ही पार्टीज हैं, कांग्रेस है और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, उन दोनों को एक पेज पे रखा जाए ताकि एक यूनाइटेड इंडिया की बात हो। कांग्रेस को यही बेनिफिट था कि एक सपोर्ट आ रही थी दूसरी पार्टी की तरफ से, क्योंकि उस वक्त जो थे वो लखनऊ पैक्ट, और लखनऊ पैक्ट के पहले हमने शिमला डेपुटेशन डिस्कस किया था। तो शिमला डेपुटेशन से ये फायदा हुआ था कि अब मुस्लिम्स जो थे वो अलग से मिलना शुरू हो गए थे वाइस रॉय के साथ। तो एक यूनिटी का बेनिफिट ये था कि इंडियन पॉलिटिशियंस की तरफ से एक डिमांड आ रही थी। इंडियन पॉलिटिशियन का मकसद यही होता है कि एक यूनाइटेड डिमांड आ रही थी। तो ये विन विन सिचुएशन थी, जो आईआर में कॉन्सेप्ट होता है विन विन सिचुएशन। एक विन विन सिचुएशन थी मुसलमानों के लिए भी और हिंदूज के लिए भी। आई बिलीव ब्रिटिश जो थे वो न्यूट्रल थे और दोनों की डिमांड सुनते थे। क्योंकि जब कांग्रेस बनी थी तो कांग्रेस में दोनों की रिप्रेजेंटेशन थी, और जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी या शिमला डेपुटेशन थी तब भी ब्रिटिश सपोर्टेड द डिमांड ऑफ सर आगा खान और जो भी उनके पास गए थे। तो आई वुड से दैट उनको न्यूट्रल थे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। बाकी there are a number of instances, a number of opinions of different people. Why Muslims wanted good relation with British after formation of All India Muslim League? क्योंकि ब्रिटिश आपके आप पे रूल कर रहे हैं। जब तक आप आपका रूलर के साथ गुड रिलेशंस नहीं होंगे तब तक आपकी डिमांड कैसे मानी जाएगी? Okay, I believe डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यही होती है कि इनको एक दूसरे में लड़ाओ। जब ये एक दूसरे के साथ लड़ेंगे तो वीक होंगे। एक मिसालें दी जाती हैं कि अगर आप एक जो है मैजेस्टिक की जो एक वो होती है, उसको आप अगर तोड़ोगे तो वो टूट जाएगी, लेकिन दो को तोड़ोगे तो मुश्किल से टूटेगी, राइट? तो डिवाइड एंड रूल यही होता है कि एक एक को एक दूसरे में लड़ाओ और उन पे रूल करो। नहीं, ये जब हम अताउर रहमान, मैंने आपका क्वेश्चन पढ़ा गवर्नर जनरल और वाइस रॉय का, जे हम जब हम कल इंशाल्लाह हम जो है वो जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे। आपका ये जो सवाल है वो कल आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है। ओके, सो here we conclude our today's session. ठीक है। stay safe stay safe at your places, and best of luck, and do study whatever we studied today. और बाकी जो है वो आपकी क्वेरीज हैं तो वो एडमिन को आप बता दें। थैंक यू।